So we'll just discuss the worksheets of the past perfect that we were doing, and I'll give you the you can tell me the answers. अगर कुछ गलत होगा तो बता दें, वो भी आप करेक्ट कर लेना अपने उसमें, क्योंकि कहीं कहीं पे आपकी वर्कशीट में मिस्टेक्स थी. ठीक है? Yes, ma'am. So I'll just start with the questions. The pen is with you, Arpita. Now we all know that the past perfect tells us about something which has been done before something else was done in the past, right? तो वो समझ आया, जो भी पहले हुआ है उससे भी पहले जो हुआ है वो पास्ट परफेक्ट होता है. Now अभी if we look at these sentences, I have seen that आपने ये वाले sentences किए हुए हैं. Just read the sentence. Read I this. went market. No. I went to market, Rina. Meet Reena, huh? But she was not at home. She dashed to meet another friend. So she, if we have to complete it with the past perfect, what will you say? She had She. went to meet अब another देखो friend. यहाँ पे हिंट दिया है बेटे. She had went नहीं होता है. They have given this go. Okay, so go, Yes. went and gone. Gone is the past perfect form. So you went is wrong. If we say she went home, तो ये past simple हो गया. वो but she had gone. When I went to meet her at her place, she had already gone. This is the past perfect form. Okay, so this should be she had gone. Okay. Okay, let's. Yeah. Gaurav, if you can start your mic, then you could also read the sentences. Chalo, let's do with Kumkum only. Yeah. Next sentence, Kumkum. I went to deposit the money bank. I couldn't. The bank desk The bank had closed. Very good. So this one is correct. Had closed. Next, quickly we'll go through all the sentences. When we went to the I was not allowed to board the train. Then I forgot So I it. had, the word is forget. So I had, the past perfect for that will be forgotten. Okay? So the correct word will be forgotten. Okay? Next. I didn't have to go आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे क्लियरली नहीं आ रही. You can do one thing, you can write on chat. Okay, write on the chat window the answers only. All of you can write on the chat window. Gaurav, you can also write on the chat window, and somebody else has also joined. You can all write on the chat window the answer, only the answer. Chalo, quickly. Just chat window.
Anyways, I didn't have to borrow her umbrella as the rain किसी ने भी नहीं लिखा है, सब लोग लिखो जल्दी से. I didn't have to borrow her umbrella as the rain. Again the इसका past perfect क्या होगा? Had. Right, very good. Had stopped. आपका नाम क्या है बेटे? हाँ, कुमकुम, you need not write the entire sentence. सिर्फ आंसर लिखो जो fill in the blanks में आएगा. और FYDGSVGA जो है, very good. Had stopped लिखना था. आपका नाम क्या है? Please let me know. अपना नाम लिखो. Ganesh. Okay, so you are Ganesh. Good. So next sentence, very good. Had stopped is the answer. Privately भेजने की जरूरत नहीं है. You can give it otherwise also. I offered him something to eat and he refused. He dash his lunch. क्या होगा eat का? Very quickly write everybody. Gaurav, you also write. Gaurav might not even be able to hear me. Yes, Ganesh, write it. Kumkum. I'm waiting. कुमकुम नहीं, eaten तो नहीं होगा. You have the fill in the blanks. He क्या होगा यहाँ पे? He had eaten, जैसे आपने अभी पहले लिखा था had stopped. So because we are talking about past perfect, so this had has to be something which he had already done. No, not will eat, bete Ganesh. We are talking about past tense. Will and shall are used in the future tense. आगे क्या होगा? अभी हम बात कर रहे हैं past tense की, और वो भी past perfect tense. और past perfect tense, क्योंकि आप मेरे ख्याल में पता नहीं पिछली बार आए थे कि नहीं. past perfect tense क्या होता है? जो भी past tense में काम हुआ है उसके पहले जो हुआ है वो काम. आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो. अपना अनम्यूट करो गणेश. यस मैम. हाँ, आपको समझ आया मैंने क्या बोला? यस मैम. हाँ, सो विल एंड शैल कब यूज होता है? मैम वो फ्यूचर में. फ्यूचर में. और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे आपने पिछले सेंटेंस में भी बोला स्टॉप. सिर्फ स्टॉप नहीं, वो तो स्टॉप. द रेन स्टॉप्ड हम बोल सकते हैं. द रेन स्टॉप्ड, पर वो अभी थोड़ी देर पहले स्टॉप हुई. बट द रेन हैड स्टॉप्ड. कब स्टॉप हुई थी? तो इससे पता चलता है कि हैड स्टॉप जब मैंने कुछ किया उससे पहले ही रेन स्टॉप हो गई थी. सो द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन आई रीच्ड हर प्लेस. कुछ भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. So that time you use had stopped. So we are on these worksheets are all for past perfect tense. So had stopped is past perfect. समझ में आया? यस मैम. Okay. So now मैम एक बार फिर से बताओ. मैम 1 2. यस मैम 1 2 और 3. 1 2 और 3 जल्दी से. I went to meet Reena but she wasn't at home. She, अब इसका क्या होएगा? go की जगह गॉन. अभी मैं बता रही हूँ. पहले क्या लगता है पास्ट परफेक्ट के से पहले? हैड. सो शी हैड गॉन. हैड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. गॉन इज करेक्ट. वेरी गुड. सेकंड का बताओ. I went to deposit the money in the bank. Had closed. वेरी गुड. हैड क्लोज्ड. सो नाउ यू गॉट द आइडिया, राइट? नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट देखो, जल्दी से बोलो. रीड इट आउट अलाउड एंड डू इट.
and tell me the answer. Read it out aloud. जोर से पढ़ो इसको. I had forgotten my ticket. I had Forgotten. नहीं, यही For गलती सब करते हैं. Forgotten. Okay? Forgetted is okay, no ma'am. word. I forgot. I had forgotten. Okay? Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Forgot is the past tense. Forget is the present tense. Do you understand that, Kumkum? कुमकुम समझ आया? ये सब गलती कर रहे हैं. Forgotten. It should be forgotten. हाँ, now Gaurav still hasn't connected over audio. Okay. Now we'll go down a little more. Read this out. Yes. Ganesh, you read it out. Read the situations and add a sentence using the verbs in brackets. Yeah. Each sentence in before as in the example. Read this. Read the example. This is also past perfect. Okay, ma'am. The driver was trembling with pride. It was his first trip on a hilly road. He had never driven on a hilly road before. हाँ, so he had. अब क्या हो गया? Past tense का past perfect का negative आ गया. Negative क्या हुआ? Had never driven. या आप बोल सकते हो he had not driven on a. So had not. Never driven. हाँ, had not or had never. Okay. So okay, ma'am. अब जब हम लिखें, so this is the example they have given. So the new sentences you have to write that way only. Read the sentence. The new teacher who came to our class yesterday was really nervous. हाँ. अब अगला सेंटेंस ऐसे बनाना जैसे इधर लिखा था. He had never driven on a hilly road before. तो अब कैसे लिखोगे? Was very nervous. तो the teacher, हाँ. The new teacher who came to our class yesterday, she was really nervous. नहीं, ये सेंटेंस तो ऐसे ही रहेगा. Was really nervous. बस ये full stop जैसे इधर है. Driver was traveling with pride. It was his first trip on hilly road. ये तो वैसे ही रहा. उसके नीचे उन्होंने नया सेंटेंस बनाया. अब ये भी ऐसे ही रहेगा. अब आपने यहाँ पे नया सेंटेंस बनाना है. अब बताओ क्या होएगा? मैम पता नहीं अभी समझ आया इस सेंटेंस का क्या मतलब है? वो क्यों ट्रेम्बलिंग विद फ्राइट क्यों था? क्योंकि he had never driven on a hilly road. इसलिए वो ट्रेम्बल कर रहा था. हाँ, फर्स्ट ट्रिप थी उसकी, है ना? इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप थी और वो डर रहा था. क्यों डर रहा था? क्योंकि वो कभी भी ड्राइव नहीं किया था हिली रोड पर. अब वैसे ये टीचर जो आई ये बड़ी नर्वस थी. क्यों नर्वस थी? अब हम सेंटेंस लिख सकते हैं. She had never taught before. उसने पहले कभी पढ़ाया ही नहीं था, इसलिए वो न्यू टीचर थी. न्यू टीचर बोल रहे हैं ना, क्योंकि उसने कभी भी पहले पढ़ाया नहीं था. She had never taught before. समझ आया? यस मैम. मैम इसमें जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर टाइप में देने ना इनका. हाँ, इसमें बीच इसके बाद एक लाइन छोड़ के और उसका आंसर लिखोगे, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखोगे. समझ आया? ये लिखा, फिर उसके बाद इसका आंसर लिखा, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखा, फिर उसका आंसर लिखा. ओके ओके मैम. हाँ, अब पहले ये वाला बताओ. आई वेंट. रीड दिस. I went to Chitwan last month. I was excited. अब इसमें बी यूज करना है.
जैसे इधर ड्राइव यूज करना था, इधर टीच करना था तो हैड टॉट लिखा हमने, यहाँ पे ड्राइव था तो नेवर ड्रिवन लिखा, राइट? अब यहाँ पे बी को यूज करना है, कैसे करोगे? I went to the Chitwan last month. I was excited. हाँ, अब एक मिनट, कुमकुम आप चैट पे लिखो, या बोल के भी, अगर बोल के भी देखो कर सकते हो। बोलो बोलो गणेश, जल्दी से बोलो। हाँ, गौरव आपका बेटे म्यूट है, गौरव का वीडियो आते जा रहा है बट ही कैन नॉट समहाउ कनेक्ट। हाँ, तो आई वॉज एक्साइटेड, अब बी करना है। चितवन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ओके? यहाँ पे चितवन जगह का नाम बोला। आई वेंट टू चितवन लास्ट वीक, आई वॉज एक्साइटेड। अब क्या लिखेंगे इसका आंसर, कौन बताएगा? I went to be Chitwan. I went to be Chitwan last month because I was excited. नो नो बेटे, अब ठीक से समझो। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द जैम बोर्ड। एक सेकेंड रुको, आई विल ओपन द जैम बोर्ड, उसमें समझाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 2 seconds। विजय, ये गौरव कोई ज्वाइन कर रहा है, ही कैन नॉट somehow connect on the audio. Can you send him a WhatsApp message? Tell him to connect on the audio. Somebody is trying to join. उसका वीडियो तो आ रहा है but he is unable to. Okay. बोल दिया है but I don't think he is understanding. Okay, so अभी हम क्या बोल रहे हैं? We'll go here again. The question was, I went to Chitwan last month. Okay, I'll rewrite it here. I went to Chitwan last month. I was excited. कुमकुम, आप अपने चैट पे इसका आंसर लिखो। क्या लिखोगी? I was excited and the word they have given in the bracket is B. तो हमने अभी क्या करना है? So this is the question. आंसर इसका क्या होगा? सिर्फ हमने अभी अंडरस्टैंड क्या करना है कि मैं चितवन गया लास्ट मंथ और मैं बहुत एक्साइट हुआ। क्यों एक्साइट हुआ? ये यूज करके मुझे बताना है कि मैं एक्साइट क्यों हुआ था। जैसे इसमें था he had never driven, या भी हमने इसमें बोला था she had never taught, ये लिखा था ना हमने अभी। Yes, ma'am. हाँ, तो अब be यूज करके हमने यहाँ पे करना है। तो इसमें क्या आएगा? मैं एक्साइट हुआ, क्यों? क्योंकि अब आंसर में सिर्फ वही लिखना है, I had never, be को यूज करना है, been there before. सिंपल, समझ आया? क्यों मैं एक्साइटेड था? क्योंकि मैं वहां पे पहले कभी गया नहीं था। तो be यूज करना है, तो had never been, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं। मैम जी, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है सेकंड? बेटे, आप सिर्फ ये सोचो कि हम अभी क्या बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखो, हम जब ये थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म करने लगते हैं ना, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म सोचने में ही बिता देते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है। हमने हिंदी कैसे सीखी है? आसान तरीका क्या है? कोई बोलता है, हम सीख लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे किसी ने बोला है he had never driven on a hilly road before, दिख गया हमको कि क्या करना है, had never driven, ड्राइव को हमने driven कर दिया, राइट? Yes, ma'am. और क्योंकि पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं
तो हैड नेवर बोल दिया उसके पहले। वैसे टीच का हमने टॉट कर दिया, और क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं और उसका नेगेटिव बोल रहे हैं तो हमने हैड नेवर कर दिया। सिंपल चीज याद रखो। वैसे ही अब बी को हमने क्या करना है, बीन कर दिया, उसके पहले क्या लिखना है, हैड नेवर। समझ आया या अभी भी नहीं समझ आया? यस मैम, आ गया। हाँ तो चलो फिर अब अगला बताओ, अब देखती हूँ समझ आया है कि नहीं आया। हाँ जल्दी से। A girl said hi to meet me at the park. I was surprised. हाँ अब ये वर्ड क्या है, सी, तो सी का क्या बन जाएगा, Seen हाँ तो क्या अब होएगा, जैसे ये था ही हैड नेवर, आई हैड नेवर, अब क्या होगा, आई है यहाँ पे तो आई ही लगेगा। हाँ तो क्या हो जाएगा, सी का क्या बनेगा, सी का सीन हो जाएगा। वेरी गुड, सी का सीन हो जाएगा। और कैसे, क्या लिखेंगे उससे पहले, आई सीन, यहाँ पे देखो हैड नेवर ड्रिवन, तो सीन के पहले क्या लगेगा, I had not seen him. आई हैड, वेरी गुड, आई हैड Never seen him. हाँ सीन गर्ल की बात कर रहे हैं, आई हैड नेवर सीन Him. हिम होएगा। अ गर्ल सेड हाई तो क्या होएगा, आई हैड नेवर सीन, बताओ कुमकुम लिखो क्या होएगा, आई हैड नेवर सीन, गर्ल के लिए क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं कि हर बोलते हैं बेटे, बोलो। मैम हर। हाँ वेरी गुड, सो आई हैड नेवर सीन हर बिफोर। ये बिफोर तो सबके लिए लग रहा, सब सेंटेंसेस में लग रहा है, राइट? यस मैम, राइट। तो समझ आ गया, आई हैड नेवर सीन हर बिफोर। कुमकुम जस्ट अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटे। समझ आ रहा है आपको? जोर से बोलो, इसकी आवाज ही नहीं आ रही। अगर बोल नहीं पा रहे बेटे कोई बात नहीं, म्यूट करो, बट एटलीस्ट राइट द सेंटेंसेस का आंसर, आंसर्स लिखो चैट पे। आप चैट पे लिख भी नहीं रहे हो। चलो गणेश नेक्स्ट करो। नेक्स्ट बोलो गणेश जल्दी। हाँ यस मैम, यस मैम। His story really made us all laugh. हेयर है, हेयर का पास्ट टेंस क्या बन जाएगा, Heard. हेयर्ड नहीं बोलते, वेरी गुड, हर्ड, यू कॉल इट हर्ड, HEARD, हर्ड, वेरी गुड। तो अब क्या होएगा, Okay, इसके ma'am. पहले क्या लगेगा, वेरी गुड, बोलो बोलो, हिज स्टोरी रियली मेड अस ऑल लाफ। तो अस है यहाँ पे, अस की जगह क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे आई था तो आई लगा, है ना। अब अस की जगह क्या बोलोगे, या यहाँ पे जो ड्राइवर की बात थी तो ही लगा, टीचर की बात आई तो आपने शी लगाया था, ऐसे ही अस में आप क्या लगाओगे, जब एक से ज्यादा होते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं, हम वहां गए। अगर हमने ऐसे बोलना है हम आर नहीं बेटे, हम वहां गए, हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैम वी। वेरी गुड, तो वी बोलो ना, अस की जगह क्या लग जाएगा, अस भी हम होता है, हम सब, वी भी हम होता है, वेरी गुड वेरी गुड। सो वी, his story really made us all laugh. We कैसे होएगा, बोलो, अगले दो वर्ड्स क्या आएंगे, वो तो कॉमन ही है बेटे,
We we लिखो कुमकुम लिखो जरा चैट पे जल्दी से. हाँ देखूं क्या लिखती हो. नेवर हेयर का तो आपने बोल दिया हर्ड हो जाएगा. तो वी हैड नेवर, ये तो वही कॉमन वर्ड्स हैं बेटे. यहाँ भी हैड नेवर है. सब सेंटेंसेस में हमने हैड नेवर लगाया. हैड नेवर, राइट? yes ma'am. Because we are talking about past perfect tense, इसलिए had लगता है. और उसका हम नेगेटिव फॉर्म बोल रहे हैं, इसलिए नेवर लग रहा है. नेवर की जगह नॉट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेवर और नॉट इज द सेम थिंग. ओके. वी हैड नॉट हर्ड. अब ये क्या बोल रहा है? मेड अस ऑल लाफ. हमने क्या चीज नहीं सुनी थी? स्टोरी. हाँ. सो वी हैड नेवर हर्ड. इट भी बोल सकते हैं. स्टोरी इट होती है, ही शी नहीं हो सकती. या आप स्टोरी भी बोल सकते हो. द स्टोरी बिफोर. ये बिफोर भी पहले ही रहेगा. जैसे इधर बोला ऑन अ हिली रोड बिफोर, वैसे ही द स्टोरी बिफोर. डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम, अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड करते हो, फिर अगला नहीं बता पाते. और ये कुमकुम आज चुप बैठ गई है, पता नहीं क्यों, बता ही नहीं रही है आंसर. हाँ, नेक्स्ट पढ़ो ये. द फिल्म मूव्ड हर टू टीयर्स. और वर्ड कौन सा है? सी का हेड सीन हो जाएगा. हैड सीन होएगा या हैड नेवर सीन? मैम एक मिनट. हम जब ये वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो हैड नेवर ही बोलना पड़ेगा ना. ओके मैम. हैड नेवर. हाँ, तो हैड नेवर seen the film. Seen. Who had never seen? The film moved her to tears. तो her की जगह क्या हो जाएगा? जैसे us की जगह we हो गया था, तो her की जगह क्या हो जाएगा? मैम him. her की जगह बेटे लड़की की बात हो रही है. जैसे यहाँ पे ही हो गया था ड्राइवर के लिए, तो हर की जगह क्या होगा? him. हर की जगह क्या होगा? इधर ड्राइवर के लिए ही हो गया था, तो हर की जगह क्या होगा? डोंट बी नर्वस, वी लर्न लाइक दिस ओनली. हाँ, हर की जगह क्या होएगा? जब बॉय में हमने ही यूज किया, तो गर्ल में हम क्या यूज करेंगे? she. वेरी गुड. तो शी. तो घबरा क्यों रहे हो? शी तो पता ही है ना आपको. यस मैम. हाँ, फिर क्यों घबरा रहे हो? शी हैड नेवर सीन. अब उसने बोला मूव्ड हर टू टीयर्स. इसका मतलब क्या है? बहुत वो ट्रैजिक पिक्चर थी, जिस इसीलिए वो रोई ना. शी हैड नेवर सीन. अब उतना बड़ा बोलना है. सच अ ट्रैजिक मूवी. किस चीज को देख रही थी वो? मूवी, फिल्म. मूवी को मूवी बोले या हम फिल्म बोले? हम फिल्म ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फिल्म लिखा है. शी हैड नेवर सीन सच ए ट्रैजिक फिल्म बिफोर. बिफोर लगाना भी इम्पोर्टेंट है. ओके. ओके मैम. हाँ, अब ये बोल रही है we had never heard it before. very good, very good, good कुमकुम. ये पिछले वाले उसका बताया है उसने. इतना टाइम लग गया बेटे आज लिखने में, क्यों? चलो, anyway, good. So we'll move ahead to the next. Now tell me, this Kumkum had done already. Define past perfect tense. इनमें से कौन सा ऑप्शन चलेगा? A, B, C, D. Action that happened before another past action, action happening now, action that will happen in future, or action that will happen
बिफोर अ फ्यूचर टाइम। कौन सा करेक्ट आंसर पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए? बोलो। मैम फर्स्ट। Very good. So the first one is correct. Next, form the past perfect tense of the verb say. Say का क्या होएगा past perfect tense? Tell me. Past मैम had said। Very good. Had said. Next, use the correct tense of the verb. Read the sentence. 6 people dashed for this position at the bank। हाँ, मैम इसमें had applied। had applied. Very good. Next, ये भी कुमकुम लिख रही है। Very good. Very good कुमकुम. All correct. Next, Form the कुमकुम. हाँ, form the fourth. past perfect tense of the verb See. see। मैम इसका had seen। वेरी गुड। हैड सीन। अब देखते हैं हर्ष से पूछते हैं। हर्ष आया। हर्ष अपना ऑन करो माइक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये वाला, ये वाला। फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ दिस वर्ब रन। हाँ, इसका From the past perfect tense of run, it, run, had run in the क्या होगा जल्दी से बताओ। फोर्थ का उसने बोला। अरे फोर्थ का कुमकुम आपने फोर्थ का बोला था। बी 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 नहीं है बेटे, सी है। अब फिफ्थ वाले का बताओ। आप भी चैट पे लिखो तब तक। गणेश लिखो। नो बेटे, वी हैड। पिछली क्लास में आप मस्ती कर रहे थे ना, इसलिए आपको पता नहीं है। ऑल्दो यू हैड अटेंडेड। हैड तो हैड रैन भी हो सकता है, हैड रन भी हो सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। राइट। Okay, now sixth question. Write down the verb form indicated in the parenthesis. अब देखो, write the verb form past perfect tense of plant. Many people. अब बताओ क्या होगा। क्रॉप्स के लिए क्या वर्ड लिखोगे यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ बोलो। Many people had cropped the plants। वेरी गुड। हैड क्रॉप्ड। वेरी गुड। हैड क्रॉप्ड बेटे, हैड प्लांटेड नहीं। क्रॉप वर्ड दिया है ना, इस वर्ड का करना है कुमकुम, इस वर्ड का करना है। तो हैड क्रॉप्ड। हैड प्लांटेड ठीक है, मगर अभी हम क्रॉप्ड की बात कर रहे हैं। क्रॉप्ड इज द ऑपोजिट ऑफ प्लांटेड। गुड। सो नाउ शी इज सेइंग ओके। हाँ, नेक्स्ट, राइट वर्ब फॉर्म indicated in parenthesis past perfect tense of use. अब पढ़ो। some farmers, this, read the sentence Ganesh quickly. Some farmers dash the same methods as their ancestors did। Yeah, तो past perfect tense of use का past perfect बनाना है। यहाँ पे लिखा है ना, use का बनाना। तो some farmers, use का क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट? वेरी गुड कुमकुम। हाँ, सो use का used, तो had used बेटे। पास्ट परफेक्ट करना है, नॉट जस्ट परफेक्ट, नॉट जस्ट सिंपल पास्ट। had used, ओके। Yes ma'am। हाँ, नेक्स्ट, राइट वर्ब फॉर्म इंडिकेटेड इन पैरेंथेसिस। हाँ कुमकुम आप भी लिखो। द फार्मर्स डैश use the past perfect tense of reap. R-E-A-P. Do you know what the meaning of reap is? No ma'am। Read the sentence. The farmers dash the harvest at the end of the summer। Very good कुमकुम। हाँ है। इसका पहले ये बताओ पास्ट परफेक्ट क्या होगा? रीप करना होता है द हार्वेस्ट एट द कि उसका had वेरी गुड। हैड
Had reaped. Kumkum, what is the meaning of reaped? So do you all know how you can find the meanings? You can go to Google and say reap meaning and you will get the meaning there. Just see. So you should never get, एकदम से रुकना नहीं चाहिए कि मेरे को मीनिंग नहीं आ रहा है. यू कैन क्विकली फाइंड आउट. अब तो आजकल इतना इजी हो गया, यू ऑल हैव फोन्स, अब तो डिक्शनरी भी नहीं ढूंढनी पड़ती है. तो क्या होता है उसका मीनिंग? देखो यहाँ पे दिख रहा है ना मीनिंग? दिख रहा है मीनिंग या नहीं दिख रहा यहाँ पे? So reaped means to cut. Yes, ma'am. Okay. So what yeah. So abhi, but we have to use the word reap only. You cannot say cut. So had reaped. Now, had reaped. Now supposing the word was cut. Use the past perfect tense of cut. So what had would cut? Yes, had cut. Cut का cutted नहीं होता है. Okay? Yes, ma'am. Good. So we'll go to the next. इसमें से बताने हैं. मैं ABCD लिखूंगी, कुमकुम आप बताना चैट पे, और आप वैसे बताओ. गणेश, you can tell me. Yes, ma'am. ABCD. बताओ जल्दी से. Read it and tell me. Yes, ma'am. हाँ. I do the dishes. Very good, कुमकुम. बताओ जल्दी से कौन सा होगा? मैम कन्वर्ट किस में करना है इसको? What is the correct past perfect form of I do the dishes को past perfect form कौन सा है इसमें? जल्दी से बोलो. नेक्स्ट का भी बोलो तुम. हाँ बोलो. मैम वो लास्ट डी. अच्छा, वेरी गुड. गुड कुमकुम. सेकंड का बोलो. कुमकुम लिखो तुम. सबका लिखते जाओ. मैं सबको ABCD समझो और सबके आंसर्स लिखो. कुमकुम आप भी बताते जाओ जल्दी से. मैम सेकंड का सी. We'd visited Paris. Very good. Okay. थर्ड का बी. मैम थर्ड का फर्स्ट. वेरी गुड. फोर्थ का फोर्थ. गुड स्टूडेंट्स आई हैव. फोर्थ का मैम वो लास्ट. वेरी गुड. चलो फिफ्थ क्वेश्चन. शी मेक सम डिलिशियस मील्स. इसका बताओ. वेरी गुड कुमकुम. जल्दी से बोलो. मैम फर्स्ट एंड सेकंड. सेकंड क्यों होगा? सेकंड क्यों होगा? फर्स्ट एंड सेकंड तो हो ही नहीं सकता. मैम फर्स्ट डिग्री सेकंड में हैज, इसलिए वो नहीं आएगा. सो फर्स्ट. वेरी गुड. अब ये सारे क्वेश्चंस करके सबमिट करना. कुमकुम ने ऑलरेडी किए हैं, उसका रिवाइज हो रहा है और उसने जो मिस्टेक्स करी होंगी उसको पता चल गई होंगी अब. यस मैम, मैं आज कर दूंगा. चलो अब ये वाला करो क्योंकि टाइम होने वाला है. जल्दी से करो. अब जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे जितना भी हो सकता है. लास्ट वाली छोड़ देंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझाऊंगे. अभी ये करो. ओके. रीड. आफ्टर राम हिज हॉलिडे इन जापान. क्या करना है? पहले क्वेश्चन समझो क्या करना है. व्हाट डू यू हैव टू डू? रीराइट दिस विद या सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट बताना है. राइट टेंस में या सिंपल पास्ट यूज करना है या पास्ट परफेक्ट यूज करना है. कहाँ पे सिंपल पास्ट होएगा और कहाँ पास्ट परफेक्ट होएगा वो डिसाइड करना है आपने. इन्होंने जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं, किसका पास्ट परफेक्ट होगा मतलब उसमें हैड यूज होएगा और किसमें नहीं होएगा. सिर्फ उसका डायरेक्ट, जैसे स्पेंड का होता है स्पेंट पास्ट टेंस, या वांट का होता है वांटेड. अब कहाँ इस सेंटेंस में हैड स्पेंट लिखना है या हैड वांटेड लिखना है,
एक हैड स्पेंट, एक में हैड लगेगा, एक में हैड नहीं लगेगा। ओके, वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। चलो जल्दी से। अच्छा मैम, जो ये सारे क्वेश्चन है इनमें एक में सिंपल पास्ट भी लगेगा और एक में और एक पास्ट में परफेक्ट भी पास्ट लगेगा। परफेक्ट। हाँ, अब ओके लिखो, मैम। पढ़ो सेंटेंस। आफ्टर राम डैश, आफ्टर इसीलिए राम हिज बहुत हॉलीडे। इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो अच्छे से समझने चाहिए। जैसे ही समझ गए अब आपको एकदम से पता चल गया क्या करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा ये पढ़े बिना ही हम सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं मोस्टली, तो फिर गलतियां हो जाती हैं। तो हमेशा ये एक छोटा सा टिप है, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू। ओके, like in this Okay, case they ma'am. are asking that you to rewrite the sentence. So this sentence has to be rewritten. Like for example, we'll write this sentence: after Ram sent, after Ram, अभी मैं नहीं लिखूंगी, but you have to write the complete. Spent his holiday in Japan, he dash to learn, he want to learn Japanese. Okay, so इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है with the right tenses. अब बताओ ये क्या बनेगा? लिखो सेंटेंस कुमकुम, क्या होएगा ये वाला सेंटेंस? चैट पे लिखो। मैम इसमें स्पेंड का स्पेंड, वो स्पेंड का स्पेंड हो जाएगा और वो वांटेड का वांट का हेड वांटेड। After Ram spent his holiday in Japan, he had wanted to. उसके बाद उसने सोचा। had जो होता है वो उससे पहले, और इधर ये क्या बोल रहा है? आफ्टर राम स्पेंट, राम ने जब अपना, आफ्टर राम हैड स्पेंट, जब उसने वो कर लिया था उसके बाद ही वांटेड टू लर्न। उल्टा बोल रहे हो क्यों? अब समझो इसको। क्योंकि ये बोल रहा है आफ्टर राम, राम ने जब, कब किया, कब? जब उसने स्पेंड किया था अपना हॉलिडे, उसके बाद ही वांटेड टू, ही, उससे पहले तो ही हैड नॉट वांटेड टू लर्न, ही वांटेड टू लर्न, उसके बाद वो करना चाह रहा था। तो जब वो सीखना चाह रहा था उसके पहले उसने जो किया तो वहां पे हैड स्पेंट लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? नहीं समझ आया? हैड स्पेंट हमेशा जो काम हुआ होता है उसके पहले लगता है। उसने स्पेंड कर लिया था, इसलिए वो हैड स्पेंट हिज हॉलिडे इन जापान। जब उसने ये काम कर लिया उसके बाद ही वांटेड टू लर्न जापानीज। ओके मैम। समझ आया? कुमकुम, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, वेरी गुड। उसने करेक्ट लिखा आंसर। नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट बोलो। तो अब इस वाले जो मैंने बताया इससे क्या क्लू मिला? जो आफ्टर वाला होता है उसके पहले हैड लग जाता है, राइट? अब नेक्स्ट वाला बताओ। हाँ लिखो जल्दी से। कुमकुम आप रीड दिस, गणेश क्विकली। गणेश ऑन करो माइक। यस मैम, वो फादर हैड फोन। एक मिनट, अभी मैंने क्या बोला? जहां पे देखो ये छोटे से टिप्स याद रखने चाहिए। आफ्टर राम हैड स्पेंट हिज हॉलीडे, तो आफ्टर के साथ हैड लगाया, राइट? अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर फादर तो नहीं है, आफ्टर तो बाद में है। अब बताओ इसका क्या होगा? मैंने हिंट दिया है। यस मैम, फादर हैड फोन्ड। मैम फोन में ईडी लगेगा ना? फोन्ड में ईडी तो लगेगा, मगर हैड इससे पहले लगेगा कि नहीं? नो मैम, नहीं मैम। हाँ, तो फिर हैड क्यों बोल रहे हो? हाँ, सो फादर, हाँ, फादर फोन्ड अस आफ्टर ही अराइव्ड हाँ,
at the After af- he had had arrived. Very good. Okay. After he had arrived at the yes ma'am airport. उसके बाद उन्होंने किया, तो जो बाद पहले काम किया था उसमें had arrived, had लगेगा, right? yes ma'am अब समझ आया? yes ma'am कुमकुम आपने लिखा ही नहीं. शिखा, शिखा भी पता नहीं कौन है, बार बार ट्राई कर रहे हैं आने का जाने का. हाँ चलो थर्ड पढ़ो. Susan the radio सूजन, after सूजन इसको बोलते हैं सूजन. दिस इज द नेम ऑफ अ गर्ल, एन इंग्लिश गर्ल. ओके. Susan the radio after she the dishes इसका टर्न ऑन है. टर्न ऑन. yes मैम इसका मैम आएगा वो टर्न का क्या हो Susan जाएगा? turned हाँ. वेरी Susan गुड. turned वेरी on the radio after she had washed the dishes वेरी गुड. एक्सीलेंट. वेरी गुड कुमकुम. वेरी गुड. Good. I have good children today. Next. When she quickly. We'll just complete till here and finish. yes ma'am जल्दी से पढ़ो. When she. when she the match already इसका तो arrive का क्या मीनिंग होता है? जब वो आई, to come, to reach a place. So arrive का क्या past tense होएगा? arrived Very good. हाँ तो when she arrived the match वो match had very match good. already had started नहीं, very good. You were correct. देखा, अगर हम टेंसेस और हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं सोचते ना तो हम बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं. अभी जैसे आपने बोला और फिर आपको लगा नहीं मेरे तो कुछ गलत रूल हो गया. आपने बिल्कुल करेक्ट बोला था. When she arrived, the match had already started. This was correct. आपने यही बोला था. एकदम से हमें सुनने से ही पता चल जाता है क्या करेक्ट है. ओके. सो डोंट, अगर आपको लग रहा है सुनने में कि had already started करेक्ट है तो वही करेक्ट होगा. वही करेक्ट था. वेरी गुड कुमकुम. हाँ नेक्स्ट. फिफ्थ वाला पढ़ो गणेश क्विकली. जी मैम हाँ आज आप ही ने पढ़ना है. ओके मैम after the man whom he the cat मैम इसका after the man had come home he feeded the cat फीड का फीडेड नहीं होता है. फीड का पास्ट टेंस होता है फेड. ओके. Fred हाँ वेरी गुड. फेड. वेरी गुड कुमकुम. okay मैम वेरी गुड कुमकुम. नेक्स्ट. before he a song he dashed the guitar हाँ मैम अब इसका देखो होगा एक मिनट. आफ्टर का ऑपोजिट क्या है? बिफोर. before हाँ ठीक है. हाँ अब बताओ इसका. okay before he sang a song he had played the guitar वेरी गुड. एक्सीलेंट. नेक्स्ट. she dashed a video after the children dashed to bed इसका वो she had watched a video after the children शी हैड वॉच्ड आफ्टर. उसके बाद हैड वॉच्ड कैसे हो सकता है? उससे पहले होगा ना. okay वो she watched a video after the children had go to bed had gone to bed very gone. good. Gone to bed. Very good. Next. after Muna dashed breakfast she dashed her family after Muna had made का क्या होगा? made नहीं, मेक का होता है मेड.
Okay, ma'am. Made. हाँ. After Muna made breakfast, she had called her family. She had आफ्टर मुन्ना. Yes. ऐसे कैसे? After मुल्ला. Munna. आफ्टर के साथ क्या लगेगा? देखो ये क्या लिखती है. बाकी तो ठीक लिखे हैं अभी. उसने भी ये वाला सेंटेंस फिर से बोलो. आफ्टर मुन्ना मेक का मेड हो जाएगा. हाँ. Made breakfast. आफ्टर she शी. had अरे बेटे आफ्टर के साथ क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट. आफ्टर तो आफ्टर शी हैड मेड ब्रेकफास्ट शी कॉल्ड हर फैमिली. उससे पहले, कॉल करने से पहले जो काम हुआ है तो हैड मेड हो जाएगा ना. फिर कंफ्यूज हो Yes, गए? ma'am. हाँ तो फिर हम हैड. आपने ऊपर भी बताया था. हाँ फिर क्यों भूल गए? चलो नेक्स्ट. Sorry. हाँ. I dashed very tired because I dashed too much. हम्म. Uh, I बी. had been very tired because I studied too much. अब ठहरो. आई हैड बीन नहीं. आई यहाँ पे सिंपल पास्ट लगेगा इसका. आई वॉज. बी का होता है वॉज सिंपल पास्ट. आई वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज आई हैड स्टडीड टू मच. क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा था इसलिए हैड स्टडीड आएगा. पहले पढ़ा उसके बाद थका ना, है ना. Yes, ma'am. इसलिए Yes, हैड. ma'am. सो आई वॉज वेरी टायर्ड. सिंपल पास्ट टेंस बी का क्या है? वॉज. अगर हमने पास्ट परफेक्ट कहीं पे इसका लिखना होता है तो हैड बीन हो जाता बी का. पर अभी हम सिंपल पास्ट लिख रहे हैं तो सिंपल पास्ट में बी का वॉज होता है. Okay, ओके. ma'am. जी मैम. हाँ. लास्ट सेंटेंस. They dash a motorcycle before they buy car. Ma'am, बिफोर इसका दे. अब दोनों में पास्ट टेंस बोलने हैं. कहाँ पे परफेक्ट बोलोगे और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट. ओके मैम. मैम यहाँ पे आएगा they owned a motorcycle before they had bought a car. बिफोर दे हैड. अभी यहाँ पे हमने इसमें क्या किया था? बिफोर वाले. बिफोर. Opposite कर दिया था उसका. हाँ तो दे बॉट अ कार. तो यहाँ पे क्या आएगा? Bought. दे. Before they had bought car. बिफोर दे हैड बॉट अ कार. एक्चुअली होना चाहिए. ये थोड़ा सा गड़बड़ है. ठीक है. ओके. ओके ओके. मैम. तो अब हम आगे और भी है पर क्लास तो बहुत लंबी चल गई. ओहो पूरा तो हो गया. अब सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस एंड देन वी विल गो थ्रू द वर्कशीट्स फॉर दिस. ओके. सो गुड. ओके मैम. गुड चिल्ड्रन. थैंक यू मैम. Okay, I'll just close this and I'll end the class, stop my sharing and see you guys tomorrow again. Okay? Tomorrow Okay, ma'am, you bye. have, bye.